प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन की एजीएम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट है। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल कंपनियों के लिए भारत एविएशन सेक्टर में निवेश के बढ़िया मौके दे रहा है। भारत वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स में निवेश कर रहा है। सरकार भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सभी कदम उठा रही है। भारत को 2030 तक ग्लोबल एमआरओ हब बनाने का लक्ष्य है। एक और नया सनराइज सेक्टर उभर रहा है, एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। हमारी नई एमआरओ पॉलिसी से भारत को एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का ग्लोबल हब बना के दिशा में तेजी आई है। 2014 में भारत में 96 एमआरओ फैसिलिटीज थी। आज इनकी संख्या 154 हो चुकी है। 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूल, जीएसटी में कटौती, टैक्स रेशनलाइजेशन, ऐसे कदमों ने एमआरओ सेक्टर को नई ऊर्जा दी है। अब हमारा लक्ष्य है 2030 तक भारत को $4 बिलियन का एमआरओ हब बनाना। टेस्ला के मालिक एलन मस्क के पिता एरोल मस्क भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। एरोल मस्क अयोध्या में राम मंदिर भी जाएंगे। एरोल भारत की क्लीन एनर्जी कंपनी सर्वोटेक के ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड में शामिल है। हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने उनसे खास बातचीत की है। Okay, Erol, welcome to India. Tell us something about your association with Servotech. What role you will be playing here, and also we are told that your daughter will also be joining. How do you see the overall EV ecosystem in India? Well, you know, the system at the moment is doing quite well, and it's thanks to a company like Servotech that it's doing well. And what we do know is that these type of organizations, well run, are going to grow very massively in the next few years, because the demand for the services that they provide is going to grow tenfold over the next 5 years, if at least tenfold. So you should all be very happy to know that you have companies like Servotech in India that are doing this, and that will probably be doing it outside of India as well in due course. Yeah. When we talk about the EV ecosystem, your son has formed the biggest, largest EV company in the world. Tell us something about his growing years. How was he and your association with your son? Elon. Well, you know, we tackle every project that comes our way with everything we can. You know, we don't let go. We keep going bulldog style until we get it going. And yes, Tesla has been at times a case of, well, we're done, we finished, Elon's finished, you know, and then at other times it's grown. And today I can honestly say I was in the United States in April for a month. Nearly every third car is a Tesla in America, and across America from New York, from San Francisco to New York, every third car is a Tesla, and full self-driving is everybody's using full self-driving now, and and the Y is the most popular car in America at the moment. My last question, Erol, you have a very packed schedule this time. You will be visiting Ayodhya to visit the Ram Temple also. Yes. What are the things that you're looking forward to visit in India? And we have also told that you like Indian food and also Bollywood. Well, yes, you know, I think Bollywood's all right. It's very entertaining. What I do like, the history of India fascinates me. I mean, the history of India is more the history of the human race than in the history of India. You know, because it's the only culture that we know of where you can actually read about things that go back like 14,000 years, not 3,000 years like in Egypt and stuff. So, no, India is definitely a place for a lot of visits and a lot of, things to be found about the past. And the Indian cuisine also you are looking forward to? Oh, yes. No. Everywhere in the world now, for many years that I can think of, I can go back very far. You can get Indian restaurants everywhere. Everywhere. So
everybody in the world has been to an Indian restaurant, including me. Any particular dish that you would want to try this time? Yes, well, I like the chicken, tikka chicken. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you so much. टेस्ला ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग में फिलहाल कोई रुचि नहीं दिखाई है, ये कहना है भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी का। भारी उद्योग मंत्रालय ने आज ईवी पॉलिसी के लिए गाइडलाइंस जारी की है। क्या है इसमें खास, बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, स्कीम ऑफ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया एक स्कीम थी जिसका जो पहला जो अनाउंसमेंट था वो 2024 में किया गया था और उसके बाद एक साल से ज्यादा समय तक इसका स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चले थे। आज इसका जो फाइनल गाइडलाइंस हैं वो जारी किए गए हैं और ये लगभग वही हैं जो कि ओरिजिनल स्कीम में थी। जो टॉप दुनिया की ईवी कंपनियां हैं जो भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहती हैं, वो भारत में अगर वो निवेश करती हैं तो उन्हें कंसेशनल रेट पे 15% कस्टम ड्यूटी पे इंपोर्ट करने की इजाजत होगी। यहाँ पे जो शर्तें रखी गई हैं कि कम से कम $35,000 की गाड़ी होनी चाहिए और अगर वो कम से कम $500 मिलियन यानी कि 4150 करोड़ रुपए निवेश करते हैं 3 साल के अंदर, तो उन्हें हर साल 8000 गाड़ियां 15% कस्टम ड्यूटी के पे जो है इंपोर्ट करने की इजाजत होगी। यानी कि 5 साल में लगभग वो 40,000 यूनिट्स जो हैं गाड़ियों की वो इंपोर्ट कर पाएंगे। इसमें शर्तें कुछ लोकलाइजेशन की रखी गई हैं, मसलन 3 साल के अंदर 25% भारत में कंपोनेंट्स जो सोर्स होने चाहिए। इसके अलावा 5 साल में करीब 50% डीवीए होना चाहिए। ये कुछ शर्तें रखी गई हैं और इसका जो विंडो है वो अगले कुछ दिनों में जो है जारी हो जाएगा। लेकिन सरकार ने एक और चीज जो खास बात कही है कि जरूरी नहीं है कि एक ही बार विंडो हो, 120 दिनों का विंडो होगा जहां पे कंपनियां अप्लाई कर पाएंगी, लेकिन वो कई बार खुल सकता है विंडो। इस बात के भी इंडिकेशंस दिए गए हैं। अगले साल मार्च में भी एक बार इसे खोलने की बात कही जा रही है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है, टेस्ला को लेकर काफी ज्यादा लोगों के अंदर इंटरेस्ट था कि क्या टेस्ला इसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो अब तक जो हमें पता चला है, टेस्ला ने बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाई है स्कीम में। शुरुआत के 1-2 मीटिंग्स को अगर छोड़ दिया जाए तो बाद की स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में टेस्ला ने अब तक रुचि नहीं दिखाई है। हालांकि अभी विंडो खुला, ऑफिशियल अप्लाई करने का जो समय है वो अभी बाकी है, वो देखना होगा। कुछ और कंपनियों ने रुचि जरूर दिखाई है, कुछ जर्मन कंपनियों ने दिखाई है, ये भी सूत्र हमें बता रहे हैं। हालांकि जब विंडो खुलेगा तो ऑफिशियली कौन कौन अप्लाई करता है ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। मार्केटिंग खर्च के नाम पर डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट देने वाले और विदेश में टूर कराने वाली फार्मा कंपनियों पर सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने फार्मा कंपनियों को पिछले 1 साल के मार्केटिंग खर्च का पूरा हिसाब किताब 31 जुलाई तक देने को कहा है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की एंट्री पर भी रोक लगी है। पूरी डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। ये देखिए, महंगे गिफ्ट और विदेश यात्रा के एवज में डॉक्टरों को महंगी दवाइयां लिखने का लालच देने वाली फार्मास्यूटिकल कंपनियों के खिलाफ सरकार सख्त है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि सरकार ने सभी दवा कंपनियों और उनके एसोसिएशन को लिखकर कहा है कि वो 31 जुलाई तक पिछले 1 साल के अपने तमाम मार्केटिंग एक्सपेंसेस का ब्यौरा सरकार को सबमिट करें। अगर वो ऐसा नहीं कहती हैं तो सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। यही नहीं, सरकार ने जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के एंट्री पर भी बैन लगा दी है। कहा है कि जिस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को डॉक्टर से कम्युनिकेट करना है वो ईमेल या फोन के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स के अंदर एंट्री पर बैन रहेगा। दरअसल देश में UCPMP लागू है, यानी कि यूनिवर्सल कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। इसके तहत सरकार ने ये कदम उठाए हैं कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो किसी लालचवश किसी पर्टिकुलर ब्रांड्स की दवाइयां ना लिखें, जेनरिक मेडिसिन लिखें। इसी वजह से सरकार ने ये तमाम कदम उठाया है। दरअसल सरकार चाहती है कि मरीजों को सस्ती दवाइयां मिलें और इस वजह से ये जो UCPMP लागू होने के बावजूद भी कई सारे डॉक्टर्स इससे फॉलो नहीं कर रहे थे। लिहाजा सरकार ने ये 2 कदम उठाए हैं। एक तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस देने को कहा है और दूसरा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर बैन करने की बात कही है। देश के IIT, NITs और IIITs जैसे संस्थानों की प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस के रिजल्ट जारी हो गए हैं। छात्र JEE.adv.ac.in पर जाकर JEE एडवांस 2025 के रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। इस बार परीक्षा का संचालन IIT कानपुर ने किया था।
कोटा के रजित गुप्ता ने जेई एडवांस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। उन्होंने आईआईटी दिल्ली जोन से जेई एडवांस परीक्षा दी थी। रजित गुप्ता ने परीक्षा में 332 मार्क्स हासिल किए हैं। इस बार 1,80,000 के करीब छात्रों ने एडवांस परीक्षा दी थी। इसमें से 54,338 छात्रों ने सफलता हासिल की है और इनमें से 9,404 लड़कियां हैं। इस बार प्रत्येक विषय और एग्रीगेट मार्क्स में एडवांस की कट ऑफ टीम पिछले साल के मुकाबले कम रही है। मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 के छठे दौर में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूर्व विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर शानदार जीत दर्ज की है। गुकेश अपने शतरंज करियर में पहली बार क्लासिकल टाइम कंट्रोल में कार्लसन को हराने में सफल रहे हैं। कार्लसन हार के बाद काफ़ी हताश नजर आए और हार के बाद उन्होंने टेबल पर मुक्का मारा जिससे मोहरे गिर गई। इसके बाद कार्लसन डी गुकेश से माफ़ी मांगकर तेजी से वहां से निकल गए। अहमदाबाद में आईपीएल का फाइनल मैच होने वाला है। तैयारियां अंतिम चरण में हैं और इसके कारण होटल, एयर टिकट और ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ काफ़ी महंगा हो गया है। देखिए डिमांड किस तरीके से हाई है, बता रहे केतन जोशी। मुंबई के सहजवीर छाबड़ा पंजाब किंग के बड़े फैन हैं और जिस होटल में टीम रुकी है पिछले 3-4 दिन से वहीं ठहरे हैं। 4 गुना रूम रेंट दे रहे हैं। अभी अहमदाबाद के सभी होटलों में ऐसा ही माहौल है। मैं इस होटल में पिछले 3 दिन से पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने आया हूँ। वो 11 साल बाद फाइनल में पहुँचे हैं और मैं चाहूँगा कि वो इस बार फाइनल जीते। मैंने प्राइस एक्स्ट्रा पे किया इस होटल के लिए, बट अगर वो जीत गए तो बहुत वर्थ इट होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल, कोल्ड प्ले और ऐसे कई इवेंट हुए हैं। ट्रैवल पोर्टल्स के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल होटल, एयर टिकट की बुकिंग रेट 35% तक ज़्यादा है। प्रीमियम होटल स्टे 6,000 रुपये प्रति रात से बढ़कर 8,200 रुपये हो गया है। बजट स्टे 2,400 से बढ़कर 5,200 हो गया है। अहमदाबाद की फ़्लाइट 60 से 100% तक महंगी होने वाली है। इस सेक्टर में अब बड़े निवेश भी हो रहे हैं। मसलन एजी ग्रुप ने हॉलिडे इन के साथ जेवी के तहत 200 करोड़ की लागत से 4 स्टार होटल का निर्माण शुरू कर दिया है। We are starting our journey with Holiday Inn in our hotel brand as a good brand, and we are also planning कि भी अहमदाबाद में अच्छी जर्नी है तो और भी होटल्स अभी आने वाली हैं। हम अभी जो हमारा इन्वेस्टमेंट पर्पस देखोगे आप तो टोटल लैंड एरिया हमारा 3,500 मीटर का एरिया है, जिसमें हम लोग 150 कमरे की होटल, जिम, स्पा, यहाँ पे बैंक्वेट हॉल, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है, 1,000 लोगों का बैंक्वेट हॉल प्लान कर रहे हैं, एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट और एक हमारा ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट और बहुत सारी और भी अमेनिटीज होती है जो हम लोग प्लान कर रहे हैं। अहमदाबाद बिजनेस हब तो था ही, अब टूरिज्म एक्टिविटी भी यहाँ काफ़ी बढ़ गई है। अगले साल भी अलग अलग प्रकार की कई इवेंट होने जा रही है, जिसका सीधा फायदा अहमदाबाद के रियल एस्टेट, होटल, टूरिज्म और ट्रैवल इंडस्ट्री को होने वाला है। केतन जोशी, अहमदाबाद। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने नीट पीजी 2025 की परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। ये परीक्षा 15 जून को होने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही शिफ्ट में नीट पीजी की परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने नए केंद्र का चयन करने के लिए परीक्षा को फिलहाल टाल दिया है। एग्जामिनेशन बोर्ड जल्द ही नई परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी करेगी। और अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में आज निचले स्तर से रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी बैंक बाजार को संभालने में कामयाब रहा। हालांकि रिकॉर्ड क्लोजिंग लेते हुए निफ्टी बैंक लगातार चौथे दिन बढ़त पर बंद हुआ है। इसके अलावा सेंसेक्स 77 पॉइंट गिरकर 81,374 पर बंद हुआ है। निफ्टी 14 पॉइंट की गिरावट के साथ 24,717 पर बंद हुआ है। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। बाकी डिटेल बता रही हैं कंचन नौटियाल।
तो डेफिनेटली हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और आज भी हमें एक रेंज बाउंड मोमेंटम बाजार में देखने को मिला। देखिए क्यूज की बात करी जाए तो मिक्स क्यूज थे। ग्लोबल मार्केट में हमें जो क्यूज मिले थे वो नेगेटिव साइड में थे, लेकिन जो डोमेस्टिक मार्केट के क्यूज थे वो काफी ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम बाजार में बना रहे थे। चाहे आप बात कर लीजिए जीडीपी ग्रोथ की, चाहे बात कर लीजिए जीएसटी कलेक्शन की। आरबीआई की पॉलिसी से 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट का अनुमान लगाया जा रहा है। अर्ली मॉनसून और ऑटो सेल्स के नंबर ने बाजार के सेंटिमेंट को बूस्ट किया है। बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में हमें किस तरीके का देखने को मिला है। निफ्टी की बात करी जाए, अडानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इटर्नल और पावर ग्रिड आज बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की इस टाइम पे बात करी जाए तो हीरो मोटोकॉर्प नंबर के बाद रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। एचडीएफसी लाइफ में 1.5% की गिरावट। मेटल स्टॉक सारे ही इस टाइम पे बज में थे। जेएसडब्ल्यू स्टील 0.25% की मंदी और टेक महिंद्रा में भी करीब 2% का डाउनसाइड आज के सत्र में देखा गया है। मिड कैप में बात कर ले, यस बैंक की अच्छी खासी पोजीशन यहां पे बनती हुई दिखाई दी है। करीब 8.5% की बढ़त। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अच्छी खासी तेजी, करीबन 7% का इजाफा। रियलिटी पैक ही आज पूरा बज में बना हुआ था। प्रेस्टीज एस्टेट की बात करी जाए तो 5% की अपसाइड यहां देखने को मिला है। ओला इलेक्ट्रिक 5.5% की तेजी के साथ करके कारोबार करके बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात कर लेते हैं। नायका नंबर्स के बाद ये रिएक्शन देखने को मिला है, करीब 0.5% की कमजोरी। मसगांव नंबर्स के बाद डायरेक्टली रिएक्शन आया है, 3% का इसमें डाउनसाइड देखने को मिला है। एम्फोसिस करीब 3% और मैनकाइंड करीबन 2.25% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तुरंत हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। देश में कोरोना वायरस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या तकरीबन 4000 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 10 दिन में 15 गुना तक बढ़े हैं मामले, और सबसे ज़्यादा मामले केरल में दर्ज किए गए हैं, 1435। बाकी डिटेल बता रही हैं दीपाली नंदा। देखिए, पिछले अगर 2 से 3 हफ्तों का आप ट्रेंड देखें तो उसमें आप पाएंगे कि जो कोविड के नए केसेस हैं उनकी संख्या तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी ओवरऑल देश में अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो इनकी संख्या 3961 तक पहुंच गई है, यानी कि ये आंकड़ा 4000 के बेहद नजदीक है। जो वेबसाइट पर डेटा अपडेट किया गया है उसके मुताबिक पिछले 10 दिन में 15 गुना तक नए मामले बढ़े हैं। अब 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 363 नए केसेस आए हैं। पश्चिम बंगाल में 82 हैं, दिल्ली में 61 है, गुजरात में 55, उत्तर प्रदेश में 32 और केरल से 64 नए केसेस पिछले 24 घंटे में दर्ज हुए हैं। वहीं अगर मैं मौत के आंकड़े की बात करूं तो अब तक देश भर में कोविड की वजह से 28 लोगों की मौत हो चुकी है और सरकार की तरफ से एक बार फिर से ये निर्देश जारी किए गए हैं सभी राज्य सरकारों को कि वो अपने स्तर पर जागरूकता बढ़ाएं। खासतौर पर जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन जरूर करें लोग। और ये प्रोटोकॉल में जो बड़ी बातें हैं उसमें इन्हीं चीज़ों को शामिल किया गया है कि बेवजह भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, मास्क पहने, हाथ धोते रहें और अगर हल्के से भी लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो अभी फिलहाल अगर देखा जाए, आप पूरी सिचुएशन को देखेंगे तो स्थिति इतनी गंभीर नहीं है, क्योंकि ये जो वेरिएंट है ये उतना ज़्यादा घातक नहीं है जितने पहला वेरिएंट या फिर पहले ही हमने वेव्स में देखा। तो फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधा और कहा है कि पोस्ट डिलीट करने और माफ़ी मांगने के बाद इस तरह की कार्रवाई गलत है। दूसरी तरफ सनातन धर्म का कार्ड भी बीजेपी ने उछाल दिया है। बीजेपी ने कहा कि बंगाल में सनातन का अपमान होता रहता है लेकिन कभी केस दर्ज नहीं होता। वहीं शर्मिष्ठा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले वजाहत खान के खिलाफ भी केस दर्ज कराए गए हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुवाहाटी में केस दर्ज हुए हैं। वजाहत खान की शिकायत पर ही शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार किया गया था। और आइए आपको समझाते हैं कि यह पूरा मामला कैसे शुरू हुआ और सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है। 14 मई 2025 को इंस्टाग्राम पर अपलोड की गई एक वीडियो आज देशव्यापी बहस का मुद्दा बन गई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पुणे की लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली शर्मिष्ठा पनौली ने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल उठाए। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गई और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। शर्मिष्ठा पनौली ने अपने वीडियो में कहा था कि बॉलीवुड के कुछ नामी एक्टर्स देशभक्ति के गाने गाते हैं, सीन में तिरंगा लहराते हैं, लेकिन असल संघर्ष में एक शब्द नहीं कहते।
ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी चुप्पी शर्मनाक है। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकियों का समर्थन करने वालों को जवाब देना जरूरी है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे एक धार्मिक टिप्पणी के रूप में लिया गया। पूरा देश 140 करोड़ भारतीय एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं, उस वक्त आप इस तरह के अल्फाज यूज करेंगे अगर हमारे नबी के बारे में, हमारे प्रॉफिट के बारे में, तो कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उनके खिलाफ शिकायतों की बौछार होने लगी, जिसके बाद शर्मिष्ठा ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर माफी मांगी। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद हिमाचल से बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत उनके समर्थन में आ गई है। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड, क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी बीच शर्मिष्ठा पनोली के बचाव में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने शर्मिष्ठा का समर्थन करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लॉ की छात्रा शर्मिष्ठा ने अपनी बात रखी। कुछ लोगों को उनके शब्द आपत्तिजनक लगे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और वीडियो को डिलीट कर माफी मांग ली है। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी का विरोध किया है। उन्होंने इसे पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग बताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि सोशल मीडिया पोस्ट के लिए की जा रही अंतर्राज्यीय गिरफ्तारियां जब तक ये साफ तौर पर साबित न हो जाए कि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, पूरी तरह से पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग है। शर्मिष्ठा पनोली का मामला अब सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट का नहीं रह गया, बल्कि एक बहस बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पोस्ट और एक धर्म विशेष के खिलाफ हेट स्पीच के आरोप में इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी हुई और अब इस पर सियासी घमासान मचा है। आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। गंदी जुबान सियासी घमासान 7:57 पर आवाज अड्डा में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय डेलीगेशन के सदस्य सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी नहीं, देश पहले है। हम यहां भारत की आवाज बनकर आए हैं। हम वो कर रहे हैं जो देश के लिए जरूरी है। If you just read the press, this is what I'm giving to understand, that people are saying, he's supporting so-and-so, he's not supporting so-and-so, they are supporting the government, etc. I have come here to oppose the government of India. I mean, if I wanted to do that, I would stay at home. I have come here to speak for India, whoever speaks for India. And in whichever way they speak for India, whatever is said for India, we are here to support. It's only a short period of 10 days, 12 days, etc. Then you have to go back home and do what you are required to do at home. But here for India first, India and only India. इसी के साथ आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।